Assalamu alaikum. So welcome back in the new lecture. Yesterday we have learned about the maximum and minimum function. So this lecture is continuing with the is more connected. This topic is connected with the more with the yesterday topics, as in which we have studied about the maximum, relevant maximum and relevant minimum. So in this lecture we are going to further study about the applied maximum and minimum problems. So now we are going to further towards the applied problem which we study. So in many cases we have seen that there are many quantities which are involving some maximum values and some minimum values. We have to find different approaches about the minimum and maximum values. So in this lecture we are further focusing on the quantities which we have to find about the minimum, its minimum and their maximum. So focusing towards today's topic. So before going to further study, now we are going to first learn about the how to solve these problems. So we are further now focusing towards the procedure, how the procedure can be followed. So moving towards the procedure for solving maximum and minimum problem. So for solving the maximum and minimum problem, we have to take some steps. So first of all, if we have any statement, so first of all we have to analyze these statement. After analyzing this statement, we have to draw an appropriate figure, the label quantities to the relevant problem. So in step 1, we are simply going to draw the figure of the problem which are going to be discussed, and we have named the all quantities. After that, in second problem, we have to find the formula for quantity to be minimized or maximized. In second step, we are simply going to find a formula. We are going to make a formula that is used to find the quantity to be maximized or minimized. That quantity should be maximized or minimized. Simply we have to make a formula, or we have to take a formula. So in third step, using the condition stated in the problem, to eliminate variables, express the quantity to be maximized or minimized as a function of one variable. In third step, as we have seen in many in last problems, that we have giving the values of each variables, and we are going to further checking the is it either, as in last lecture we have seen that is it increasing or decreasing. So similarly in this sense we are going to further check the quantities, either it is maximized or minimized. It is going to be maximum to a maximum value, or going to be towards a single minimum value. So in this last step, we have to use the techniques to find the maximum and minimum. Similarly, and as in last lecture, we have seen the overall values of the function. Is it maximized or minimized? Is it going to increasing or decreasing? Similarly, so same techniques should be applied here, and we are going to further use these techniques to find the maximum or minimum value of the given quantities. So once again I am going to repeat this in Urdu. देखिए जी, अप्लाइड मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉब्लम्स के हवाले से हम पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अप्लाइड मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉब्लम आते हैं। सपोज कर लें कुछ क्वांटिटीज हमें बताई गई होती हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है, उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो हमने कुछ टैक्टिक्स यूज करनी होती हैं उसको एनालाइज करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है, गिवन प्रॉब्लम है, उसको हमें एक स्टेप वाइज प्रोसेस में हम इसको सॉल्व करते हैं। वो कैसे होगा? सबसे पहले हमें कोई भी प्रॉब्लम मिला होगा, उसकी हमने फिगर ड्रा करनी होगी। फिगर ड्रा करने के बाद जो क्वांटिटीज हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज उसकी फाइंड करनी होगी, और जो जो क्वांटिटीज गिवन होंगी उसकी हमने लेबल्स लगाने होंगे क्वांटिटीज पे, ठीक है। दूसरा स्टेप में हमने ये करना होगा, हमें एक फॉर्मूला जो है वो फाइंड करना होगा या बनाना होगा, ठीक है, जिससे क्वांटिटीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सके। वो किस तरह होगा, एग्जांपल पे देखकर मजीद हम सीखेंगे कि जो फार्मूला किस तरह बनाते हैं और उसको जो है किस तरह फाइंड करते हैं फार्मूला को, और जो है वैल्यूज मिनिमाइज्ड और मैक्सिमाइज किस तरह होती हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी कंडीशन आपने याद रखनी है
यूजिंग द कंडीशन स्टेटेड इन द प्रॉब्लम टू एलिमिनेट वेरिएबल्स। कुछ कंडीशंस यूज करते हुए, ठीक है, हमने वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है। जो अनवांटेड वेरिएबल्स होंगे या जिसकी हमें वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी, वो वाले वैल्यू हमें एलिमिनेट करने होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करना होगा जो कि मिनिमाइज या मैक्सिमाइज होंगी फंक्शन के हवाले से, उसको वन वेरिएबल के हवाले से उसको मजीद ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। तीसरा स्टेप में फिर से बता देता हूं आपको। तीसरे स्टेप में हमने करना इतना है कि जो है कंडीशन स्टेट, जो हमारी पास कंडीशन थी उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है, और वेरिएबल्स को जो है एलिमिनेट करना है, और जो है क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करना है जो कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होंगी एक ही फंक्शन के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ टेक्निक्स यूज करनी होगी जिससे हमने मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मजीद समझने के लिए हम फर्दर चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ, और इसको स्टेप वाइज करने के लिए हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं ताकि इसको मजीद हम देख सकें। ठीक है सर, so now we are going to solve the example related to the maximum and minimum value. So here it asking that an open box is to be made from a 16-inch by 30-inch piece of cardboard by cutting out squares of equal size from the four corners and banding up the size. What size should be the squares be to obtain a box with the largest volume? So it is simply saying that we have an square, okay, simply we are having this square, this is 16 inches and this is 30 inches, okay. So we are going to make a square so that we can obtain maximum largest volume, and we have to cutting the square of equal size from the four corners. Suppose this is the equal size. So we have to cut out the squares of the equal size to make a shape of like this. So what we are going to do, we are going to simply make a square of like a box, so that we can maximum obtain the volume from that. So simply we are going to further resolving these problem. So if we are supposing this as x, so now if we are going to cut out the corners of all equal sizes, so how can we going to do it further? Simply suppose these are the x units. This is x units and this is x unit. Similarly, this is x, this is x, x and x, x and x. So we are going to further naming the all quantities. So, and according to this is sometimes x quantities. So further checking the all quantities, we are going to further redraw this solutions. So guys, इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। देखें, हमारे पास जो बॉक्स है, जो स्क्वायर बोर्ड है, उसकी साइज ये है, उसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास 16 इंचेस, उसकी जो विड्थ है वो है हमारे पास 30 इंचेस, ठीक है।
हमें जो स्क्वायर बनाना है उसके अंदर जो मैक्सिमम हम वॉल्यूम ऐड कर सकें, ठीक है। तो अब देखें, अब स्क्वायर को जो है बनाने के लिए हमें साइडों से जो है ना कट आउट करना होगा, ठीक है, इक्वल साइड्स में, ताकि स्क्वायर बन सके। तो हमने ये वाली साइडें जो है इसको कट आउट किया है, ठीक है। ये 4 साइडें हैं, इसको हमने कट आउट कर दिया है, ठीक है। अब देखें, सपोज कर लें कि ये जो हमारे पास पहले साइज थी, स्क्वायर हमने ये बना दिया, ठीक है, इससे ये स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब इसमें हमें मैक्सिमम वॉल्यूम जो है ना, वाटर का हो या कुछ भी वॉल्यूम हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। अब देखें, इसकी जो थोड़ी एनालिसिस करते हैं, हमारे पास जो है यहाँ पे लेंथ थी 16 इंचेस, ठीक है। 16 इंचेस में से एक यूनिट एक्स का यहाँ से गया, एक यूनिट का एक्स का यहाँ से गया। तो हमारे पास 16 में से -2x हो चुके हैं, क्योंकि x हमने कंसीडर किया है कि कोई भी हमारा यूनिट है जिसकी हम साइज जो है वो जो है उसको स्क्वायर बना रहे हैं, ताकि हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम हो। तो लेंथ में से हमने कितने, अब लेंथ क्या बची हमारे पास, 16 - 2x, ठीक है। अच्छा, विड्थ में से भी हमारे पास सिंपली सेम स्ट्रेटजी अप्लाई होगी। 30 विड्थ थी हमारे पास, उसमें से जो है -2x जो है हमने रिजॉल्व कर दी है, ठीक है। ये पहले 30 थी, अब ये कितनी बनी, 30 - 2x बनी, ठीक है। ये 16 थी, 16 - 2x बनी, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं, अच्छा, ये वेरिएबल्स को जो है मजीद हमने जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। स्क्वायर ये हमारे पास बन गया है। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पास, सबसे पहला स्टेप था हमारा जो इन जो क्वांटिटीज है जो हमारे पास, इसको हमने वेरिएबल्स असाइन करने हैं। तो हमने कौन सा वेरिएबल असाइन किए हैं, एक्स बी द लेंथ ऑफ द साइज ऑफ द स्क्वायर्स टू बी कट आउट। जो हम स्क्वायर्स की साइज कट आउट करेंगे उसकी हमने लेंथ कर दी कितनी, एक्स यूनिट्स, ठीक है। और जो है वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स वी जो है, अब जरूर इसमें जो है कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा, लार्जेस्ट वॉल्यूम जो है हमने फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का जो है वॉल्यूम इसमें क्रिएट हो जाएगा, इसके स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला हम जानते हैं, लेंथ विड्थ इनटू हाइट, ये वॉल्यूम का फार्मूला है। ये स्टेप नंबर 2 है, ठीक है, वॉल्यूम का फार्मूला है, ठीक है। अब डायरेक्ट हमने जो वैल्यूज हमारे पास थी, पहले 16 थी, इसमें से -2x किया, 30 में से -2x किया। अब हाइट पता है कितनी है, वी डोंट नो दैट, ठीक है, x यूनिट्स है। सपोज कर लें x यूनिट है, क्योंकि एक x यहाँ से भी जो है x है, यहाँ से भी x यूनिट हमने फाइंड जो है ओवरलैप की है, यानी कटआउट जो किया है वो बेसिकली x यूनिट है, ठीक है। तो हाइट हमारे पास कितनी बची, x बची। तो ये x वो वाला, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह आएगी। अब देखें इंटरवल कैसे हम बना रहे हैं, ठीक है। इंटरवल बेसिकली हम ऐसे बना रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम है। अब देखें 16 इंच है आपके पास, ठीक है, 16 इंच को मैक्सिमम बैंड करें तो ज्यादा से ज्यादा 16 दो साइड से हैं तो 8 बनता है। या तो कम से कम 0 वॉल्यूम रखते हैं या ज्यादा से ज्यादा 8 उसका 8 वॉल्यूम होता है। वो किस तरह होता है मैं एक मरतबा फिर से समझा देता हूं। देखें, सपोज कर लें ये जो हमारे पास एक रजिस्टर है, ठीक है, सपोज कर लें ये रजिस्टर है, ठीक है। इसकी ये वाली जो साइज है, ये वाली साइज है, सपोज कर लें ये जो है 16 इंचेस है, ये सपोज कर लें 16 इंचेस है। अब हमें जो है इसको जो है बैंड करना है और मैक्सिमम इसके अंदर वॉल्यूम इंसर्ट करना है। तो ये 16 इंच को हमने मैक्सिमम इस तरह बैंड कर दिया। तो हमारे पास 16 का हाफ कितना बचा, इक्वल बैंड किया हुआ है हमने, 16 का हाफ बचा 8, ठीक है। या तो कम से कम जो है 0 हमारे पास वॉल्यूम होगा या तो ज्यादा से ज्यादा 8 वॉल्यूम होगा। तो इसी तरह ये वाला जो बॉक्स हमने ड्रा किया है, ये वाला बॉक्स, ठीक है, इसमें कम से कम 0 पानी फिल हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 8 जो है 8 जो है यूनिट्स जो है पानी फिल हो सकता है, ठीक है। तो हमने सिंपली ये इंटरवल डिफाइन किया है। ये इंटरवल कैसे डिफाइन हुआ, ये उसकी लेंथ को देखकर डिफाइन हुआ है, ठीक है, क्योंकि इक्वल साइड्स में हमने स्क्वायर कट आउट किए हैं और उसके बाद स्क्वायर बनाया है। तो स्क्वायर में वॉल्यूम कितना मैक्सिमम जो है वो फिल हो सकता है, 0 से लेके 8 तक फिल हो सकता है, ठीक है। अब वॉल्यूम आ गया, ठीक है, हमें इसको जो है रेट ऑफ चेंज यानी वॉल्यूम की जो है मुख्तलिफ वेरिएशन किस तरह होती है, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। तो हम सिंपली यानी मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहे हैं तो हमें जरूर उसकी स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम जो है मजीद उसके एंड पॉइंट्स और जो है उसकी क्रिटिकल पॉइंट्स को देखते हुए हम जो है
उसको मजीद एनालिसिस कर सकते हैं। 0 से लेके 8 तक आपका जो है मैक्सिमम इंटरवल बनेगा, ठीक है। कम से कम 0 होगा, ज्यादा से ज्यादा 8 यूनिट्स होगा इसके अंदर जो है फिर वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास क्या है, ये हमने डिफरेंशिएशन की है, किसको किया है, विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। वॉल्यूम को हमने डिफरेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हाई हमारे पास कुछ इस तरह, ये सिंपली डिफरेंशिएशन है। और जो डिफरेंशिएशन अच्छा, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन किस तरह आ रही है हमारे पास, देखें 480x से इसकी वेरिएबल की डिफरेंशिएशन यानी कांस्टेंट होगी, ठीक है। अच्छा, 92x है, इसकी होगी 184, 4x क्यूब है, इसकी होगी 12x स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने टुवर्ड्स क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमने जो है इसकी जो है dv और dx विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0 हमने जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमारे पास x की कौन सी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई x इक्वल टू 12, दूसरी आई x इक्वल टू 10/3, ठीक है। अब जो है 10/3 देखें किस क्या ये इंटरवल में आता है, यानी क्या हमारे पास जो है इंटरवल के अंदर 12 यूनिट्स वॉल्यूम फिल हो सकता है, इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि उसकी साइज मैक्सिमम 8 है, ज्यादा 8 यूनिट से जो है पानी भर गया तो फिर आउटसाइड गिरता जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो नेग्लेक्ट हो जाता है। तो हमने करना क्या होगा, इस जो x इक्वल 12 है, मैक्सिमम है इंटरवल से, ये हमारे इंटरवल के अंदर लाई नहीं कर रहा होगा, तो सिंपली इसको जो है नेग्लेक्ट करना है, हमने इसको रिमूव करना है, नेग्लेक्ट करना है। नेग्लेक्ट कर दिया, इसको कंसीडर नहीं करना। और मैक्सिमम हमने क्रिटिकल पॉइंट्स कौन सी सेट करनी है, क्रिटिकल पॉइंट हमें जो है वो 10/3 को कंसीडर करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास ये हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट हमने सेट करी है और इसको हमने नेग्लेक्ट करना है। क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है ये वाला, इसमें हमारे पास ये फुल अप नहीं हो रही है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसकी सिंपली करना क्या है, सिंपली अब जो है क्रिटिकल पॉइंट आ गई हमारे पास, एंड पॉइंट्स भी हैं हमारे पास, तो सिंपली हमने फॉर्मूला के अंदर रखना है और सबसे पहले हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको रब कर रहा हूं मैं। अच्छा, हमारे पास जो एंड पॉइंट्स हैं वो है 0, 8 और क्रिटिकल पॉइंट है 10/3। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो हमें गिवन एक्सप्रेशन था वो हमारे पास कुछ इस तरह है, 480x वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है 480x माइनस 92x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। v ऑफ 0 पे हम सबसे पहले एंड पॉइंट्स पे चेक कर रहे हैं, 480 माइनस 92 0 स्क्वायर प्लस 4x क्यूब यानी 0 क्यूब। तो ये हमारे पास कुछ जो आएगा वो हमारे पास सिंपली आएगा 480x, इसके साथ 0 मल्टीप्लाई है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है v जो है 10/3 है, तो इसको हम सिंपली फार्मूला के मुताबिक रखेंगे, 480 इंटू 10/3 माइनस 92 10/3 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10/3 होल क्यूब। तो ये हमारे पास जो ओवरऑल इसकी अगर वैल्यू सिंप्लीफाई करके हम देखेंगे तो ये हमारे पास 10/3 पे आ रही है इसकी 19600 अपॉन 27, ये हमारे पास 10/3 पे आ रही है। और 8 पे क्या आ रही है, 8 पे अगर देखेंगे तो हम मजीद इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको मजीद मैं जो है रब कर रहा हूँ ताकि हम मजीद इसको देख सकें।
तो ये इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो मैक्सिमम जो वॉल्यूम स्टोर होगा वो इस वाली पॉइंट पे होगा, क्रिटिकल पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, और जहां पे इंच क्यूबिक, इसका यूनिट लिख लीजिएगा, क्यूबिक इंचेस। ठीक है, क्यूबिक इंचेस क्योंकि जो है हमारे पास वॉल्यूम के हिसाब से इसको क्यूबिक इंचेस के हमारे पास गिवन था। Once again, I'm going to repeat this problem. So we have to, the task which is given in this problem, so we have to make an square so that we can maximum fill, so that we can obtain maximum volume in that square. So, and we have what we have given only one cardboard. So what are we going to do to make an square? So simply we are going to cut out the sides of the square. So that we can make the square. So at the corners we are going to cut out the x units. So the original size we have given is 16 inches, and we have cut out the corners by x units. So it becomes 16 minus 2x, which is, this is the length. 16 minus 2x is the length. Okay, so and similarly about the width, it becomes 30 minus 2x, because original width was 30 and we have cut out x units from both corners, from one corner and other corner. So simply we have obtained 30 minus 2x. So we have simply subtracted 2 units, 2x times unit, 2 times x units from the 30. So we have obtained, and similarly what we have obtained x units, we have obtained the height equal to x units, because we have simply substituted, cut out the corners by x units. So what should be the x units, we are going to see in future. So similarly then we have simply make an square. We have simply, as in figure, we have drawn in the figure, and we have named these quantities. What we have named, we have named x units, we have named volume, we have named the formulas. So after that we have found out the formula, which is v equal to length into width into height. So simply we have substituted the values. So now we are going to further discuss about the interval. In the interval, as we have discussed about the last problem related to the bending up of any cardboard or any book to obtain the maximum volume. So it is the there has some minimum range and has a maximum range according to 16 inches length. So the bending up of the square to making a square. So it is possible that we have the maximum value of 16 is divided by 2, because in both sides we are going to bend this. So we can maximally obtain 8 units. So what we have obtained from 0 inches to 8 inches, we have the interval becomes from 0 to 8. So simply what we have done in the next step, we have simply differentiate that function with respect to x. After differentiating, we have get an equation like this. So simply we have to set the dv upon dx. We have to set we have taken the differentiation, and we have get this differentiation. So after taking, we have to set the critical points. So for taking for obtaining the critical points, we are going to do setting the differentiation of volume with respect to x equal to 0. So what we have done here, which similarly it is same, 480 minus 184x plus 12x square equal to 0. So simply we have taken 4 common from this statement, from this equation. It becomes 120 minus 46x plus 3x square, and we have then obtained the values of x equal to 12 and x equal to 10 upon 3 by breaking the middle term. So here x equal to 12, it is not applicable in our square, because 12 inches are greater than 8 inches. And what we have the maximum square size is about the 8 inches, about the interval. Either we can fill the volume up to 0 or maximum to the 8. So 12 is the outside of the volume, outside of the square. It comes in the, it flow in the outside of the square. So we have simply neglected the x equal to 12 units, and then we are going to further
Now we have and we are going to further focusing our critical point at 10 upon 3. So maximum volume at the 10 upon 3 can be seen through this maximum and minimum volume. So in this regard, what we have done, we have followed the theorem, or we have followed the uh, some endpoints. We have substituted the endpoints which are the endpoints 0 and 8, and we have substituted the critical point in the given function, so that we can know that what is the maximum volume, so that we can obtain in the given box. So simply we have substituted the endpoints v0 and v8, which results in 0 and 0, and we have substituted the 10 upon 3 in our given statement. So we have obtained 19,600 upon 27 cubic inches. So this is the maximum volume, and these are the minimum volumes. Simply we can conclude this is the maximum volume is at the critical point, and the minimum volume is at the end points. So once again I am going to repeat this in Urdu. देखें जी, हमें जो है एक बॉक्स बनाना था, एक कार्डबोर्ड मिला था, तो हमने सिंपली करना क्या था, एक बॉक्स बनाने के लिए हमने सिंपली इतना करना था कि जो कार्डबोर्ड था उसकी साइडें काटनी होती हैं, ठीक है। साइडिंग काटने के बाद उसको बैंड करना होता है, ठीक है, ताकि उसको स्क्वायर बना सकें, उसको जो है एक बॉक्स बना सकें। तो बॉक्स की जो साइज थी हमें गिवन थी, इसमें 30 इंचेस उसकी विड्थ है और 16 इंचेस उसकी लेंथ है। अब सपोज करने हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने जो है फिगर ड्रा की थी। फिगर हमने किस तरह ड्रा की थी, फिगर एक ड्रा की थी, उसमें हमने सबसे पहले कार्ड जो है एक शीट यानी कार्डबोर्ड लिया था, ठीक है। उसकी हमने जो साइड कार्नर्स हैं उसको एक्स यूनिट्स हमने जो है सब्ट्रैक्ट कर लिया, एक्स यूनिट सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखेंगे तो उनकी लेंथ और विड्थ कितनी बची, पहले 16 थी, अब एक्स यूनिट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी नीचे से भी ऊपर से भी एक्स यूनिट्स काटे हैं तो 2x इसमें से कट जाएंगे, तो 16 माइनस 2x हमारे पास रिमेनिंग हमारी लेंथ बची, और 30 माइनस 2x हमारे पास टोटल स्क्वायर की विड्थ बची, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास लेंथ और विड्थ तो आ गई हमारे पास। अब वॉल्यूम का फार्मूला हम जानते हैं, वो कि हमारे पास है लेंथ विड्थ इनटू हाइट, ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। लेंथ हमारे पास बचती है 30 माइनस 2x, विड्थ बचती है 16 माइनस 2x, और हाइट कितनी बचती है हमारे पास, हाइट होती है x यूनिट्स। क्यों? क्योंकि अंदर हमने उसकी जो साइड्स हैं स्क्वायर की, वो हमने x यूनिट्स चारों साइडों से इक्वल कट आउट किए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट ये जो है डिफरेंशिएट करने के बाद, और सॉरी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद स्टेटमेंट कुछ इस तरह आती है 480x माइनस 92 स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। सो ये हमारे पास ओवरऑल एक्सप्रेशन आता है इसका वॉल्यूम का। ये वॉल्यूम का हमारे पास टोटल स्टेटमेंट आ गई। अब देखें इंटरवल हमने किस तरह डिफाइन किया है। देखें बॉक्स तो है हमारे पास, बॉक्स में कम से कम उसकी बॉक्स की जो हमारे पास जो है लेंथ है वो 16 इंचेस थी, 16 इंचेस थी, उसमें से हमने 2x भी जो है सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो हमारे पास जो है ओवरऑल जो 16 इंच थी उसमें से बॉक्स बनाना है, ठीक है। बॉक्स कितनी हाइट का बनाएंगे, तो वो हमने x यूनिट्स किए हैं। अब हमारे पास उसके पास मैक्सिमम उसकी लेंथ थी 16 इंचेस, तो उसको अगर मैक्सिमम बैंड करें 16 इंचेस को, तो बैंड करेंगे टू साइड्स में, यानी टू उसकी जो है पैरेलल साइड्स में, उसको फुली बैंड करें ज्यादा से ज्यादा तो 8 यूनिट्स हमारे पास मिल सकते हैं। कम से कम 0 यूनिट्स हमारे पास आ सकते हैं, 0 इंचेस, और मैक्सिमम 8 इंचेस का हमारे पास वॉल्यूम आ सकता है, ठीक है। तो ये इंटरवल फार्मूला हमने जो है यूज किया हुआ है। उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन की है इसी जो हमारे पास वॉल्यूम की स्टेटमेंट को, वॉल्यूम स्टेटमेंट डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास x की दो वैल्यूज निकल रही हैं, ठीक है। x की दो वैल्यूज निकल रही हैं, एक 12 है, दूसरी 10/3 है। जो 12 है हमारे पास वो फंक्शन में लाया नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम 8 है, वहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स 12 तो नहीं आ सकती, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास वॉल्यूम की रेंज कितनी है, 8 है, ठीक है। कम से कम रेंज क्या है, 0 है, मैक्सिमम रेंज क्या है, 8 है, तो 12 तो हमारी 8 से ग्रेटर हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम जो है आउट ऑफ द फ्लो बॉक्स को जो है फ्लो होगा, यानी वॉल्यूम जो है बॉक्स के आउटसाइड फ्लो होगा, इनसाइड तो नहीं हो सकता। तो सिंपली हमने जो है नेग्लेक्ट कर दिया है x = 12 को, और उसके बाद जो है हमारे पास जो इंटरवल बचता है वो दैट इज 0 to 8 है, ठीक है। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट भी आ गए, हमारे पास एंड पॉइंट्स भी हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन सी हैं, 10/3 है, और एंड पॉइंट्स कौन सी हैं, 0 और जो है 8 है।
उसके बाद हमने मैक्सिमम और मिनिमम किस तरह फाइंड किए हैं। मैक्सिमम और मिनिमम सिंपली हमने फॉर्मूले के अंदर जो है एंड पॉइंट्स रखी हैं, दोनों एंड पॉइंट्स को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम देखेंगे तो वहां पे आएगा 19,600 अपॉन 27 इंचेस क्यूबिक इंचेस। तो ये हमारे पास ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है इसकी। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह। ये जो है आप बहुत आसान है, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। सो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। एक सिमिलर प्रॉब्लम है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के हवाले से। ठीक है, प्रॉब्लम में हमें जो कहा गया है, फिगर शोज एन ऑफशोर लाइन वेल। फिगर शोज, कौन सी फिगर शो कर रही है, ये वाली फिगर शोज ऑफशोर ऑयल वेल। ठीक है, एक ऑफशोर कंपनी है, उसका ऑयल वेल है जो लोकेटेड है एक पॉइंट डब्ल्यू पे। ये डब्ल्यू पॉइंट है, और लोकेटेड पॉइंट डब्ल्यू दैट इज 5 किलोमीटर फ्रॉम द क्लोजेस्ट पॉइंट ए। डब्ल्यू और ए के बीच में जो क्लोजेस्ट पॉइंट है दोनों आपस में, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 5 किलोमीटर। पॉइंट ए ऑन अ स्ट्रेट लाइन, on a straight shear line, oil is to be piped from W to a shore point B। यानी ऑयल को जो है यहां से पाइप करना है B से लेके W तक। ठीक है, W के यानी B से जो है पाइप को ऑयल पंप करना है और लेकर जाना है W पॉइंट तक। ठीक है, टू सम शोर पॉइंट P। अच्छा, बीच में एक पॉइंट हमने ऐड करनी है P पॉइंट भी। ठीक है, हमारी अपनी हेल्प के लिए। ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, जो कि ए और बी के बीच में होगी। तो फिर पता है कहाँ पे होनी चाहिए ताकि हम इजीली पाइप को पंप कर सकें बी से, और जो उसको फिर डब्ल्यू तक ले जा सकें। ठीक है, और अलॉन्ग विथ दी ए एंड बी, एंड देन ऑन टू बी वाया पाइप अलॉन्ग दी शोर लाइन, और फिर जो है बी पे थ्रू दी पाइप्स। अब देखें, इफ द कॉस्ट ऑफ लैंग पाइप इज, इसको पढ़ेंगे मिलियन, हाफ इज 1 मिलियन पर किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर पे अगर पाइप बिछा रहे हैं, 1 किलोमीटर का वो ले रहे हैं 1 मिलियन, यानी 10 लाख। ठीक है, अंडर वाटर, पानी के अंदर पाइप बिछाने के 1 मिलियन लेते हैं। ठीक है, और 500 मिलियन ले रहे हैं जमीन पे बिछाने के लिए पाइप। सो वेयर शुड दी पॉइंट पी बी लोकेटेड टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ लेंथ द पाइप। ठीक है, सवाल को समझिएगा। एक ऑफशोर कंपनी है जो कि ऑयल जो है वो पंप करती है। ठीक है, तो उसको जो है उसकी जो फिगर है, ठीक है, ये ऑयल पंप करने वाली मशीनें हैं, ये डब्ल्यू पॉइंट पे सेट की गई हैं। ऑयल पंप कहाँ से होगा, ए से बी तक। ठीक है, और हमें जो है ना ये पानी के अंदर होंगे। ठीक है, ए और बी पॉइंट कहाँ पे, पानी के अंदर है। ठीक है, अब हमें ये कहा गया है कि आपने ये वाली पॉइंट है पी पॉइंट, इसकी लोकेशन ऐसी सेट करनी है जहां पे कम से कम जो हम पाइप हैं वो पानी में बिछाएं, और ज्यादा से ज्यादा जो पाइप है हम लैंड पे बिछाएं, ताकि हमारी जो है कॉस्ट जो है बच जाए। ठीक है, अब एक बार तो फिर से देखिएगा, ये एक फिगर है, इसमें जो है ऑफशोर कंपनी के पाइप्स हैं वो बिछाने हैं, और जो है एक पॉइंट सेट करनी है जहां पे कम से कम जो है वैल्यू आ जाए। तो सिंपली हमने जो है सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, स्टेप वाइज करते हैं। सबसे पहला हमारा जो काम होता है, हम क्वांटिटीज को लेबल करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं मजीद इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्या है, हमने क्वांटिटीज लेबल करनी है। ये जो है ए और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज एक्स यूनिट्स होगा।
यानी इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस होगा दैट इज x यूनिट होगा, ठीक है। और c जो होगी कॉस्ट ऑफ द इंटायर पाइपलाइन दैट इज इन $1,000,000। सी जो है हमारे पास एक कॉस्ट होगी जो कि एंटायर पाइपलाइन की $1,000,000 में होगी, ठीक है। अच्छा, अब फिगर को देखें। फ्रॉम द फिगर जो ए पॉइंट है APW, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। APW इनके बीच में एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। जो ट्रायंगल बन रही है इसका जो है कुछ जो है हाइपोटेन्यूज भी होगा, ठीक है। यानी ये जो है हाइपोटेन्यूज पॉइंट बन रही है, ठीक है। तो इसकी हाइपोटेन्यूज किस तरह फाइंड करेंगे हम, मैं लिख लेता हूं। अब देखें, हमने सबसे पहले वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। एक्स बी दी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पॉइंट बी, यानी जो ए जो है एक्स जो होगा, ये वाला एक्स जो है ये डिस्टेंस बिटवीन ए और इस पॉइंट के बीच में जो है डिस्टेंस है, क्योंकि पॉइंट हमें वहां सेट करनी है जहां पे हमारे पास कम से कम जो है वैल्यू आ जाए कि वाटर के अंदर पाइप बिछाएं। तो पॉइंट उस जगह पे हम सेट कर रहे हैं जहां पे कम से कम वैल्यू आ जाए, ठीक है। हमने एक पॉइंट सेट किए। अब इस पॉइंट और इस ए के बीच में जो डिस्टेंस आएगा दैट इज x यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने जो दूसरा स्टेप फाइंड किया है, दूसरा स्टेप लिखा है c हमने लिया है कॉस्ट ऑफ एंटायर पाइपलाइन दैट इज इन $1,000,000, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, हमने c को जो है ये c जो है हमारे पास पूरी जो पाइपलाइन हम बिछाएंगे इसकी कॉस्ट है, ठीक है, जो किस में होगी $1,000,000 में होगी, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द फिगर APW, अब देखें ये APW, इन तीनों पॉइंट को देखेंगे तो एक राइट ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। P और W, ये जो P और W है इसके बीच में डिस्टेंस किस तरह फाइंड करेंगे, सिंपली उसकी वैल्यूज के स्क्वायर्स, ठीक है। x स्क्वायर जो कि इसका डिस्टेंस है प्लस इसका 5 किलोमीटर है, तो ये W का जो है तो ये PW का ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। इन दोनों का जो है डिस्टेंस जो है अगर फाइंड करना चाहें हाइपोटेन्यूज प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, ठीक है। तो हमारे पास जो ये उसका डिस्टेंस है जो क्या है x स्क्वायर प्लस 25 के बराबर आया। P और B के दरमियान क्या कौन सा डिस्टेंस होगा, P और B के दरमियान डिस्टेंस होगा हमारे पास टोटल 8 किलोमीटर है, इसमें से x यूनिट माइनस कर लें तो ये हमारे पास जितना बचा दैट इज PB, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, 8 माइनस x। तो टोटल हमारे पास जो C जो है वो किस तरह बना, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 25 इसका, ठीक है, इसका डिस्टेंस डिवाइड बाय 2, क्योंकि दो डिस्टेंस है ना हमारे पास, इसमें दो डिस्टेंस को हमने डिवाइड किया है, यानी दोनों डिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं, प्लस 1/2 8 माइनस x, ठीक है। इस पूरी लाइन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है तो 1/2 उस वजह से आया है, 1/2 8 माइनस x, ठीक है। फर्दर आप इसको ट्राई कीजिएगा, फर्दर आप चेक कीजिएगा इस 1/2 के हिसाब से, ठीक है। फिर जो हमारे पास ये इंटरवल जिस तरह बना, ये इंटायर लाइन हमारे पास, इंटायर लाइन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह आई, c इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 इंटू स्क्वायर रूट प्लस 1/2 8 माइनस x, ठीक है। उसके बाद जो इंटरवल है 0 से लेके 8, ये क्यों आया है, क्योंकि मैक्सिमम जो है हमारे पास लाइन बिछाने के लिए 8 किलोमीटर मैक्सिमम है, कम से कम हम 0 किलोमीटर ना बिछाएं, ज्यादा से ज्यादा पूरे 8 किलोमीटर पे बिछाएं। तो ये हमारे पास एक इंटरवल है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, सिंपली हमने इसकी डिफरेंशिएशन ली है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसकी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x ये वाली आएगी 1/2 x स्क्वायर प्लस 25
स्क्वायर ये प्लस की है तो इसमें -1 होगा तो -1/2 बन जाएगा। इसकी अगेन डिफरेंशिएशन लेंगे तो 2x बनेगी, तो ये जो है +1/2, x की जो है -x की जो है -1 डिफरेंशिएशन आएगी। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह आया, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया, ठीक है। उसके बाद हमने करना क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करनी होती है। क्रिटिकल पॉइंट किस तरह फाइंड की है हमने, सेटिंग dc/dx = 0 के बराबर हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो x/√x² + 1/2 -1/2 इसको 0 के बराबर सेट करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आएगा। x² की वैल्यू आएगी 25/3, x की वैल्यू क्या आएगी +/5/3। अब एक चीज नोट कीजिएगा, x की वैल्यू आई है +/5/3। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एक चीज आपने नोट करनी है, इंटरवल है हमारा 0 से लेके 8 तक, ठीक है, 0 <x <8, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 8 किलोमीटर है। और जो है हमारे पास मैक्सिमम जो यहाँ पे आ रहा है, एक नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है +/5/3। ये -5/3 है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर इंटरवल। ये तो हमारे इंटरवल में इंक्लूडेड ही नहीं है, तो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। और प्लस जो है +5/3 को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि 0 से लेके 8 तक जो है 8 किलोमीटर तक हमारे पास एक जो है डिस्टेंस जो है वो कवर्ड करना है, और उसके अंदर हमने वाटर के अंदर और लैंड पे लाइन बिछानी है, ठीक है। तो हम मजीद जो है आगे बढ़ते हैं हम तो अच्छा, यहां से मजीद कंटिन्यू कर लेते हैं। इससे ऊपर जो है मैं रब कर देता हूं। अच्छा, जैसा कि हमने x की वैल्यू निकाली थी +/5/√3। अब देखिए, ये प्लस तो हमारे पास पॉजिटिव साइन है और नेगेटिव साइन जो है हमारे पास वो डिस्टेंस में इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमने जो है x = -5/√3 को जो है नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है मिनिमम किस जगह पे आना चाहिए, तो मिनिमम किस जगह पे आना चाहिए, उसके बाद उसके लिए हमने क्या करना होता है, उसके लिए हमने 3 चीजें करनी होती हैं। अच्छा, जो 3 चीजें करनी होती हैं वो ये होती हैं कि एक एंड पॉइंट्स पे हमने जो है देखना होता है कि हमारे पास एंड पॉइंट्स पे कितनी वैल्यूज आती हैं, और क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। एंड पॉइंट्स पे हमने देखा कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है C0 पे हमारे पास 9 आ रही है, और C8 पे हमारे पास 9.433 आ रही है, ठीक है। और उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट में देखा हमने, वो हमारे पास आ रही है 8.33012। सो सबसे लीस्ट जो आ रही है हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू हमने जो फाइंड करनी है, तो इस लीस्ट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मिलियन से कर लें, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू मैं जो है आपके लिए यहां लिख देता हूं, ठीक है। लीस्ट वैल्यू हम इस तरह लिखते हैं, लीस्ट वैल्यू हमारे पास आ गई $8331027 मिलियन डॉलर्स, ठीक है। उसके बाद जो है अब फिर से मैं बताना चाहूंगा, इस प्रॉब्लम को रिपीट करना चाहूंगा। इस प्रॉब्लम में हमने किया क्या है बेसिकली, इस प्रॉब्लम में हमने जो है हमारे पास एक फिगर गिवन थी, उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन थी। फिगर में था एक पॉइंट है W, दूसरी पॉइंट है A, और उसके साथ एक पॉइंट है B। पाइप हमें जो है पंप करना है, ठीक है, जो है ऑयल हमने पंप करना है, ठीक है, शोर लाइन से। तो एक बीच में पॉइंट सेट करनी, और हमने जानना है कम से कम जो डिस्टेंस है वो हम जो है वाटर में अपने पाइप बिछाएं, ठीक है। उसके बाद जो है हम वहां से जो है मैक्सिमम जो है कॉस्ट बचा सकें, ठीक है। तो अब देखें, फिगर कुछ इस तरह से गिवन थी। हमने एक पॉइंट सेट करनी थी x, जो कि लीस्ट वैल्यू हमें जो है कम से कम हम पानी में पाइप बिछाएं उसके हिसाब से थी।
तो हमने सिंपली इस फिगर को एनालाइज किया। यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है हमारे पास वो पॉइंट बन रहे, एंगल बन रही है, ट्रायंगल बन रही है। तो इस ट्रायंगल को मजीद जो है हमने पहले ट्रायंगल का ये वाला डिस्टेंस फाइंड किया, फिर ये वाला डिस्टेंस फाइंड किया, फिर हमने टोटल एंटायर पाइपलाइन की कितनी कॉस्ट आएगी वो हमने लिखी। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस आया दैट इज ये आया था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। और ये हमारे पास डिस्टेंस आया था 1/2 8 माइनस एक्स, क्योंकि दो डिस्टेंस है डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 1/2 आ गया। और जो है 8 माइनस एक्स जो है हमारे पास जो 8 में से माइनस एक्स टाइम्स जो हमने डिस्टेंस जो है डिवाइड किया, सबट्रैक्ट किया है। तो ये टोटल हमारे पास जो एंटायर लाइन बनी वो कुछ इस फॉर्मेट में थी, यानी ये हमारी टोटल एक्सप्रेशन जो स्टेटमेंट आ गई, ये हमारी एंटायर पाइपलाइन की कॉस्ट है, ठीक है। तो उसके बाद हमने सिंपली इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद हमने ये क्रिटिकल पॉइंट निकाली। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास प्लस माइनस 5/3 पे आ रही थी। नेगेटिव टर्म को हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके बाद हमने जो है एंड पॉइंट्स देखी, इंटरवल क्या बना हमारे पास 0 से लेके 8 तक, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास 8 है, ठीक है। तो 0 की वैल्यू हमने इंसर्ट की तो हमारे पास 9 आ गया, और 8 की वैल्यू इंसर्ट की तो हमारे पास 9.433 आ रहा था। अच्छा, और क्रिटिकल हमने पॉइंट जब इंसर्ट की इसी फंक्शन के अंदर तो हमारे पास 8.330127 आ गई। तो हमने देखा इन तीनों में से ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट और ये वाली, इनमें से सबसे लीस्ट जो कम जो वैल्यू दे रही है वो ये वाली पॉइंट दे रही है, ठीक है। तो हमने इसको यानी इतने यूनिट्स हमारे पास जो है लीस्ट में लीस्ट हम इतना यूनिट्स बिछा सकते हैं, ठीक है। तो उसको हमने सिंपली मिलियन से मल्टीप्लाई करा दिया तो 8331027 मिलियन जो है इसकी टोटल कॉस्ट आएगी, ठीक है, वाटर के अंदर। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आप जो है इस पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। फर्दर स्टिल अगर प्रॉब्लम आती है तो हम इंशाल्लाह इसको लाइव क्लास में रिजॉल्व करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एक दूसरा प्रॉब्लम है, हमें कहा गया है हमें फाइंड करनी है रेडियस और हाइट। क्या फाइंड करनी है हमने? रेडियस और हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। किसका फाइंड करना है? राइट सर्कुलर सिलेंडर का। ये जो सर्कुलर सिलेंडर है इसकी हाइट और इसका रेडियस फाइंड करना है, जो कि किसी एक कोन के अंदर जो है इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। उसका जो रेडियस है 6 इंचेस है, ये वाला रेडियस 6 इंचेस है, और जो है हाइट जो है उसकी 10 इंचेस है, ठीक है। अब ये ओवरऑल फिगर है, हमें कहा गया था इसकी हाइट और रेडियस फाइंड करना है। ये एक जो है सिलेंडर, कोन शेप सिलेंडर, जो सिलेंडर है इट इज विद इन अ कोन शेप सिलेंडर, ठीक है। तो इसको हमने सिंपली बेसिक फिगर ये थी, ये फिगर है, ठीक है। इसके अंदर ये सिलेंडर है, इसका हमने रेडियस और जो है हाइट फाइंड करनी है। अच्छा, ये वाला जो डिस्टेंस है इसकी जो हाइट है, ठीक है, इस कोन की जो हाइट है दैट इज 10 किलोमीटर, और जो इसकी ओवरऑल वो है जो है 6 इंचेस जो है रेडियस है सिलेंडर कोन का है, यानी सिलेंडर की जो है 6 इंचेस और 10 इंचेस उसकी जो है पैरामीटर्स दिए गए हुए हैं। मजीद हमने जो है सिलेंडर की जो है रेडियस और हाइट उसकी फाइंड करनी है, ठीक है। तो सिंपली देखें, इसको अगर इस तरह नक्शा ले लें, ठीक है, ओवरऑल इसका जो है बड़ा जो वो बन रहा है, तो हमने फाइंड किया काम किस पे करना है, बेसिकली इस पे काम करना है। ये यहाँ तक इसकी हाइट आ रही है, सपोज कर लीजिए ये h हाइट है, ठीक है, और ये उसका रेडियस है, ठीक है। तो ये 10 माइनस h है। अच्छा, इसमें एडिशन हुई है, तो ठीक है, यानी h में से 10 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इतना हिस्सा हमने ऐड करना होगा, इतना हिस्सा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 6 इंचेस जो है हमारे पास मजीद है। अब हमें इसको मजीद सॉल्व करने के लिए दूसरे स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जो कि हम स्टेप वाइज फॉलो करते हैं। सो प्रॉब्लम को एक मरतबा फिर से देखते हैं, ठीक है। हमें रेडियस और हाइट फाइंड करना है राइट सर्कुलर सिलेंडर्स की, ठीक है, ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस इक्वल टू 6 इंचेस। कोन का रेडियस है 6 इंचेस, ठीक है, और जो है उसकी हाइट है 10 इंचेस, ठीक है। ये 10 इंचेस इसकी हाइट है कोन की, और इसका 6 इंचेस रेडियस है। एक बार तो आप फिर से बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो इसकी कोन की हाइट जो है वो 10 किलोमीटर यानी 10 इंचेस है, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे इसकी 6 इंचेस जो है इसकी रेडियस है, ठीक है।
तो अब इस फिगर को देखते हुए हमने एक रीटा फिगर जो है हमने जो है देखिए, ताकि उसकी टोटल जो कोन की जो है हमारे पास हाइट भी आ जाए और उसकी जो है जो उसके पास जो है हमारे पास हाइट भी आ जाए और उसका रेडियस भी आ जाए। ठीक है, तो हमने सिंपली ये फिगर ड्रा की। ये बेसिक हमारे पास एक फिगर है, इसको हमने सिंपली रीड्रा करके चेक किया तो हमारे पास कुछ ये सिंपली ये जो लाइन बन रही है इसकी कौन की बन रही है। ठीक है, और यहाँ तक जो है, अच्छा यहाँ पे इसकी हाइट पता नहीं क्या है और टोटल हाइट इसकी 10 है। तो यहाँ पे कुछ हाइट हमने h टाइम्स माइनस कर दी है 10 में, तो ये 10 माइनस h, ये इतनी हाइट यहाँ पे बनेगी। ठीक है, और ये हमारे पास रेडियस है। ठीक है, जो कि हमारे पास which should want to be find। ठीक है, अब देखें फिगर से देखें। ठीक है, फिगर में एक चीज नोट कीजिएगा, ये 10 माइनस एच क्या है, ये 10 माइनस एच ये वाला हिस्सा है आपका। ठीक है, अपॉन आर, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है अपॉन आर। ठीक है, इक्वल टू 10 अपॉन 6, ये 10 है अपॉन 6 है। यानी देखें दो अपोजिट जो है ना साइड्स को स्क्वायर बन रहा है बेसिकली ये वाला। ठीक है, तो बेसिक है तो स्क्वायर बन रहा, तो यानी इसका ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा। तो सिंपली ये इक्वेशन वहां से हमारे पास आ गई। ठीक है, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद h की वैल्यू निकालनी है, जो कि h की वैल्यू हमारे पास ये बन रही है। ठीक है, h की वैल्यू निकाली। अच्छा, अब ये चीजें कुछ वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं। r जो है रेडियस है आपका सर्कल का, हाइट जो है वो सिलेंडर की जो है हाइट है, और वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम सिलेंडर का है। ठीक है, तो वॉल्यूम वाला फार्मूला है, उसमें हाइट हमने पुट कर दी है। हाइट पुट करने के बाद हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज आ रही है, या तो 0 हमारे पास आएगी या तो 6 इंचेस आएगी। ठीक है, मैक्सिमम रेंज उसकी हमने डिफाइन कर दी है इंटरवल की। हमने सिंपली इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद हमने वैल्यूज जो है ये वाली फाइंड की, ये डिफरेंशिएटेड वैल्यू है हमारे पास। उसके बाद हमने dv अपॉन dr इक्वल टू 0 लिया है, तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। यानी r जो है आपका 4 बन रहा है, रेडियस आपका 4 है, मैक्सिमम जो आपकी r की जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है इस सॉल्यूशन के मुताबिक, जो हम पिछले लेक्चर्स में भी करते आ रहे हैं। ठीक है, अब इसकी सिंपली हमने वही जो है रोल्स जो थ्योरम हमने पढ़ा था उसको अप्लाई करना है। यानी या तो हम जो क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे आती है वो वाली वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, या फिर जो है हमने एंड पॉइंट्स पुट करनी है। तो एंड पॉइंट्स पे देखें तो हमारे पास 0 रिजल्ट आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट्स पे यानी 4 जहाँ पे रेडियस की वैल्यू 4 है, तो 160 पाई अपॉन 3 वहां पे आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन में हमने पुट करके हमने चेक किया है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ रही है, और v(6) पे भी हमारे पास 0 वैल्यू आ रही है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास ओवरऑल मैक्सिमम जो है इसकी रेडियस के हवाले से जो है मैक्सिमम वैल्यू थी। अच्छा, ये हाइट हमने फिर फाइंड करने की कोशिश की, हमारे पास रेडियस तो आ गया, इसको पुट किया और हमारे पास हाइट जितनी आ गई वो सिलेंडर की हाइट 10/3 इंचेस आ गई। ठीक है, आसान है। ठीक है, आप इसको मजीद देख लीजिएगा। Again, I'm going to repeat this. So we have given a cylinder in which a cylinder is inscribed in a cone. So we have simply drawn and we have analyzed these parameters with respect to each point. So 10 minus h, the height of the cylinder is h, and the increment is 10 minus h. So we can understand from this is the overall 10 kilometers. Overall, the height of this is 10 kilometers, and this is 10 minus h. So simply we have compared this figure and we have obtained this figure from this point. Then we are simply going to differentiating. Then we are simply going to checking the volume of this overall cylinder. So according to volume equation, v equal to pi r square h. So and we have obtained the value of h, that is equal to 10 minus pi r upon 3. Simply we have substituted and we know that this is 6 overall. The length of the radius of this is the whole range of the radius. Maximum is 6 and the radius value is maximum is 6 according to interval, and minimum is 0. So we have to substitute it, we have to work upon this interval. So similarly we have differentiated the given values which we have obtained in from here, this. So we have differentiated this value and we have finally get this statement, and then we are setting this statement towards dv upon dr equal to 0.
So simply we have taken the value of r equal to 4, and then we are going to further proceed towards the endpoints. So according to our theorem, as we have studied in last lecture, so simply we have substituted the values in the given functions, and we have checked the maximum points. So according to the endpoints, both become 0, and the critical point where r equal to 4, it gives the value of 160 pi upon 3. So simply according to this, and from as we have obtained this r equal to 4, simply we have substituted the value of r in this, and we have get the overall value of height. So please try this practice, and we will further resolve this issue. If you have any query regarding this lecture, so we will discuss in the live class. So up till now, Allah Hafiz, take care.